A tweet of the minister, that's Hardeep Singh Puri, and after that it is now again back in the controversy. See, that Mr. Puri can answer that question, but what I made it very clear is that they're only trying to diversify the main issue. Because BJP has been asking very regularly about school, colleges, hospital, infrastructure, about the liquor policy, what they've been absolutely exposed about. So now they're trying to diversify from that main issue and they're trying to play this dirty politics which they've been trying to play since last 7 years. For once, it is your responsibility as well. As a very, very accountable and a very renowned channel, you should ask the CM of Delhi this question when he talks about opening school and colleges and hospitals throughout the country. How many schools, colleges and hospitals have been opened in Delhi? It's a very, very simple one-line question which can be answered in one line. You can ask us whatever questions you want. We end up standing in front of you and answer you everything. He should have the courage to answer that question. The point is, because they want to politicize everything so that no one asks these questions to them, that is why they play these kind of dirty politics. Tell me what has happened in the last 7 years. Delhi has never looked this tired in the last 7 years, which is very unfortunate because I think the people of Delhi in coming years will definitely answer him this question because he stooped down to that level and there will absolutely be end to this kind of dirty politics. So if we talk about this particular issue, the Rohingyas issue, then now one more thing what Aam Aadmi Party is saying is that their officers is being kept in loop, whereas the Delhi government has been bypassed, and the officers who comes or the department who comes under the MHA, they are being kept in loop. See, I'll tell you one thing. I think it is about their convenience. There are times when they talk about Chief Secretary being in their favor. When it doesn't suit them, he goes against them. The point is, we cannot give a bigger clarification than what our Honorable HM has given on the floor of the House. It can't get bigger than that, where he has made absolutely crystal clear that all the Rohingyas will be deported from this country. What bigger statement you've formed from BJP side? Tell me. It has been made very clear. It is right on record. It is right in front of the whole country. So we can't say anything beyond that when our Honorable HM has said that. So I don't think so we need to make anything very clear. It is time for Aam Aadmi Party to make it very clear that what is their stand about writing this letter, that they should be given, the Rohingya should be given better accommodation. So you should ask this question to the CM of Delhi rather than asking us because our Honorable HM has already made it very clear. So I'll take two questions for our Bharat viewers also. भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो मेद भाव देखने को मिल रहा है वो पहले भी देखने को मिला है. रोहिंग्या का जब मैटर आता है बार बार ये जब चीज़ें होती हैं, कल से फिर दोबारा ये मुद्दा लाइमलाइट में है क्योंकि पुरी साहब का जो ट्वीट था मिनिस्टर साहब का उसके बाद. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे घटिया राजनीति अगर इस देश में कोई करता है तो आम आदमी पार्टी करती है और दिल्ली का मुख्यमंत्री करता है. सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब वो बात करते हैं पूरे देश में स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल खोलने की, ये तो आप एक बार ही सवाल पूछ सकते हैं दिल्ली में पिछले 7 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले. जब हम ये सवाल उनसे पूछते हैं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल का, जब लिकर पॉलिसी में उनके मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री एक्सपोज होते हैं, तो ये सिर्फ डाइवर्स करने की बात है. सिर्फ ये जो अटेंशन है इसको डाइवर्ट करने की बात है. ये डाइवर्ट करने वाली पॉलिटिक्स खेलना ना बहुत गलत है. सच्चाई है, हमारे ऑनरेबल HM ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत क्लियर कर दिया कि सारे रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया जाएगा. इससे बड़ी स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से तो नहीं आ सकती. आप ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्यों ये लेटर लिखी गई थी कि रोहिंग्यास को बेटर अकोमोडेशन मिला जाए. सिंपल एक सवाल है, सिंपल उसका जवाब दे दें. इसको घुमा फिरा के, इसको पोलिटिसाइज करके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपनी घटिया राजनीति जो पिछले 7 साल से कर रहे हैं. आप भी दिल्ली में रहते हैं, आपने दिल्ली को इतना खराब तो नहीं देखा ना पिछले 7 साल में जिस तरीके से हुई है. उससे पहले भी काम होते थे. 7 साल में ये पूछो कि दिल्ली में क्या हुआ. क्या स्कूल खुले, क्या कॉलेज खुले, क्या हॉस्पिटल खुले, क्या DTC बसेस इंक्रीज हुई, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ. प्रॉब्लम ये है कि जब इनके ऊपर कोई चीज़ आती है तो इसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. सिंपल एक सवाल जाके पूछिए. हमारे तो गृह मंत्री जी ने जवाब दे दिया. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की बारी है कि ये लेटर क्यों लिखा गया था, इसका जवाब वो दे दें दिल्ली की जनता के सामने. दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ. पार्टी ये भी कहती है कि आप या भारतीय जनता पार्टी जो MHA के अंडर में अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट में रहते हैं और सरकार को बाईपास करते हैं, उनको लूप में रखते हैं और इस तरीके की कन्वीनियंस की राजनीति है ना. कभी तो इनके चीफ सेक्रेटरी इनके हो जाते हैं, जब ये एक्सपोज होने लगते हैं तो वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं. तो जब क्योंकि सच्चाई है कि चैनल इतनी बड़ी बड़ी इनकी चीज़ें चलाता है और सारे दिल्ली को पता है, सारे देश को पता है कि क्या कारण है, क्यों चलाता है. नैरेटिव इनका सेट करता है. ये कुछ भी बोलते हैं, पूरा दिन इनकी शक्ल आती रहती है. सच्चाई है कि कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं. सच्चाई है जब भी एक्सपोज होने लगते हैं तो हर चीज़ को पोलिटिसाइज करते हैं, मीडिया के माध्यम से एक्सपोज पोलिटिसाइज करते हैं. सिर्फ 2 सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से. दिल्ली में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले, एक ये, और ये जो लेटर लिखा गया था ये क्यों लिखा गया था, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री दे देते. दूध हम जो अगर वो सच्चे होंगे तो बाहर आके दे दे, आप हमसे इसका काउंटर क्वेश्चन ले लेना. मतलब एक आखिरी सवाल और है कि इस ओवरऑल इशू की अगर बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है
HM साहब कहते हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है, उधर फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो स्टैंड क्या है? देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने इसका स्टैंड बड़ा क्लियर कर दिया है, उससे बड़ा स्टैंड कुछ हो नहीं सकता। उसका वो स्टैंड बीजेपी का स्टैंड हमेशा रहेगा। स्टैंड दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्लियर करना है कि उनका क्या स्टैंड है। क्या वो रोहिंग्यास को सेटल करना चाहते हैं, क्या वो रोहिंग्यास को बेटर अकोमोडेशन देना चाहते हैं, ये उनको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है या उनमें थोड़ा सा भी दिल्ली के लिए या देश की जनता के लिए, वैसे तो वो दिल्ली का बेटा कहते हैं अपने आप को, बाहर आके बताइए उनका क्या स्टैंड है इस मामले में। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। So you were just listening in as Republic was speaking with Gautam Gambhir, BJP leader from New Delhi, and he questioned what Aam Aadmi Party has done for welfare so far in terms of schools, in terms of education, and in terms of housing as well. As he also questions, why Aam Aadmi Party had written that particular letter with reference to Rohingyas.